तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है, पर जो वो होती है एसी, उसमें तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो फ्लो कैसे करते हैं? फ्लो ऐसे फ्लो और नहीं एक करते न्यूट्रल बेटा, होती पता है, क्या होता न्यूट्रल है? वायर। वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली ए डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब उसमें जो करंट की डायरेक्शन है ना, वो अप एंड डाउन होती रहती है। फ्लो जैसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो होती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जाते तो सोर्स से लेके लोड तक है, बट उनकी जो ऐसे हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन इज बेसिकली लाइक दिस, ऐसे होती है। तो वो हमें दिखती ऐसे है। अगर हम इसको ऑसिलोस्कोप में चेक करें या मीटर्स में चेक करें तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट। मीटर से हमें पता चलता है उसका एनालिसिस क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, हमें साउंड आती धक धक की, ठीक है। बट अगर हम उसका एनालिसिस देखें, एनालिसिस में वो हमें कैसी दिखती है, लाइक दिस, है ना, ऐसी दिखती है। तो वो बेसिकली ये चीज है कि वो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो से कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कह सकते हो, कभी ऊपर वैल्यू शो करता है, कभी नीचे शो करता है। जीरो से, जीरो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ उन्होंने, तो यही चीज यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं। इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव में हमें शो हो जाती है, कभी नेगेटिव में शो हो जाती है, और ऐसे ये साइकिल्स बनते रहते हैं। ओके ਤੇ ਸਰ हाँ जी। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਫੇਸ ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ डबल फेस ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ डबल फेस कितनी बेटा नहीं वोल्टेज होता होती कोई, या हमारे पास सिंगल फेस सप्लाई होगी या थ्री फेस सप्लाई होगी, ये चलती है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਕੀ ਨਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ हाँ जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਡਬਲ ਫੇਸ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ डबल ਜਿੱਦਾਂ फेस। 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲੈ हाँ जी। ਉਹ ਸਰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ डबल फेस आंदा। ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਯਾਨੀ ਟੈਸਟ ਹੋਲਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਲਬ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 100 ਵਾਟ ਦਾ अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਵਾਇਰਸ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। 4 ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ, ਇਹ 2 ਫੇਸ, ਇਹ 3 ਫੇਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਸਰ ਚੱਕੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਡਬਲ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਰ ਬਲਬ ਕੀ ਨਾਮ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਲਬ ਫਟ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ। ਪੂਰਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪਪਾ ਆਏ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੱਲਬ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਨੋ। तो फादर साहब ने की कढ़िया ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ? ਤੇ ਸਰ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਫੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰੀਜ਼। बैटरीज जड़ा है दैट इज बेसिकली यूज टू स्टोर द करंट, ठीक है। वो करंट को स्टोर करने के लिए काम आती है। कौन से करंट को स्टोर करने के लिए? दैट इज डीसी।
DC ਕਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਇਟ। AC ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ है, ਆਪਾਂ हर बारी देखते हैं, है ना। तो AC कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये माइंड में रखना है जो हमारे घरों में आती है। बट जो DC होती है, जो बैटरीज में होती है, वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। बाद में उसको हम AC में कन्वर्ट करके अपने घरों की लाइट्स या लोड को चला लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज द ओनली करंट दैट कैन बी स्टोर्ड। कौन सा करंट स्टोर कर सकते हैं हम? दैट इज DC। और किस फॉर्म में करते हैं? बैटरीज की फॉर्म में, ठीक है। बैटरीज एक डिवाइस है जो कि DC करंट को स्टोर करता है। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास। अब इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, हम इसको एक बार पढ़ेंगे जरूर, ताकि मैं आपको पंजाबी में या हिंदी में ये सारी बात समझाऊंगा कि क्या कहना चाहते हैं हम बैटरी के बारे में। तो इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, बैटरी इज द ओनली डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। बेसिकली एक केमिकल एनर्जी स्टोर करती है और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमें लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज अ पावर जनरेटिंग डिवाइस, ये एक पावर को जनरेट करने वाला डिवाइस है विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें बाहर चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट बैटरी के अंदर जो स्टोर हो रही है दैट इज केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी को वो बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है, ठीक है। ये नहीं कि वो केमिकल ही हमें दे देता है, हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी V एंड I ही देगा बाहर, अंदर चाहे वो जो मर्जी स्टोर कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहला जो सेल है, अब बैटरी और सेल दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। बैटरी क्या होता है? दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल। जब हम मल्टीपल सेल होता है एक छोटा सा डिवाइस जो कि छोटा सा वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, और मल्टीपल सेल्स को इकट्ठा कर दें, ग्रुपिंग कर दें इसकी, तो वो बन जाती है बैटरी, ठीक है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ बैटरी। So electrochemical cell was prepared for first time by Lungi Galvani in 1780 and Alessandro Volta 1800। तो आप देख सकते हो कि 200 साल से भी पुरानी ये जो है ये डिस्कवरी है, जिसको इन्वेंशन है, जिसको प्रिपेयर किया गया था। दो रिसर्चर्स ने इसका कंसेप्ट सबसे ज्यादा जो है वो डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, लुंगी गैल्वानी एंड एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कमर्शियल सेल इज ड्राई सेल। आप सभी ने ड्राई सेल को यूज किया है, जो हम वॉचेस के पीछे लगाते हैं एवरीडे वाले, दैट इज नोन एज ड्राई सेल। और ये सबसे ज्यादा जो कमर्शियल सेल होने वाला बैटरी की फॉर्म है, ठीक है, सेल की फॉर्म है, which is used in calculators, watches, torches, tape recorder, electronic toys and many more other devices, ठीक है। तो ड्राई सेल सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है इसकी। जनरली ये सेल कैन डिलीवर स्मॉल करंट एट लो वोल्टेज। बेसिकली सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक स्मॉल करंट को फ्लो कराता है विद द लो वोल्टेज। कभी आप सेल की वोल्टेज को मेजर करेंगे तो दैट विल बी 1.5 वोल्ट ओनली। वो 1.2 से 1.5 वोल्ट तक जो है वो हमें वोल्टेज दे सकता है। और इसका करंट की जो कैपेसिटी होती है दैट इज इन मिली एम्पियर, बहुत कम होती है, मिली में भी 0.0 मिली एम्पियर होती है। तो एक सेल इतना ही वोल्टेज और इतने ही करंट पे जो है वो को प्रोड्यूस कर सकता है। बट देयर आर मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस व्हिच रिक्वायर हाई वोल्टेज, हाई करंट और बोथ। पर हमारे पास कई 9 वोल्ट पे चलने वाली चीज होती है, कई 5 वोल्ट पे चलने वाली चीज होती है, ठीक है, कई 12 वोल्ट पे चलने वाली चीज होती है। बट एक सेल तो हमें सिर्फ 1.5 वोल्ट दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी एप्लीकेशंस इन विच वी रिक्वायर हाई वोल्टेज और हाई करंट, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। उस टाइम पे हम सेल्स को भी या तो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे या पैरेलल में कर देंगे या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर देंगे। दीज आर कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट या दोनों चीजें जब चाहिए होंगी तो हम इसको ग्रुपिंग करनी शुरू कर देंगे। उससे हमें हाई वोल्टेज भी मिल जाएगी, हाई करंट भी मिल जाएगा और दोनों चीजें भी हाई मिल सकती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो अगर कभी भी आपको बैटरी की डेफिनेशन के बारे में आए तो आपने यही लिखना है कि इट इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल क्या होता है? वो होता है जो एक स्मॉल करंट प्रोड्यूस करता है एट लो वोल्टेज, ठीक है। और जब कभी हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट की जरूरत पड़ती है, वी विल कनेक्ट द
cells in series or parallel grouping, and that grouping is known as battery. ठीक है, so battery is nothing but a group of cells. बैटरीज कहाँ कहाँ यूज होती है, हमने ये भी बहुत जगह देखा होगा, हमारे इन्वर्टर में लगी होती है, हमारी गाड़ियों में लगी होती है, बाइक्स में लगी होती है, ऑटोमोबाइल में, और पावर बैकअप पर्पस जहां जहां भी हमें पावर चाहिए, बैकअप चाहिए, हम मॉल्स में जाते हैं, वहां बैटरी बैंक बना होता है। कहीं भी हम बड़े बड़े जहाँ पे हमें पावर सप्लाई रेगुलर चाहिए और पीछे से जो है वो पावर कट हो जाए तो हमें बैकअप चाहिए, उस टाइम पे यूपीएस कह सकते हैं, उसमें भी बैटरी लगी होती है। तो देयर आर मेनी। क्या कह रहे हो? इन्वर्टर ते थल्ले जेडी बैटरी लगदी हाँ जी, हाँ जी, इन्वर्टर दे नीचे बैटरी है, मैं पहले ही बोल दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? एक मिनट ठहरो। हाँ जी, बताओ शिवम, कौन सी? सर आ वाली। हाँ जी, हाँ जी, ये बैटरी है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ, yes, this is basically a battery which is used in, I think, ये बहुत जगह यूपीएस में यूज होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बेसिकली छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं टू गेट द हाई करंट और हाई वोल्टेज, ठीक है। सो बैटरीज हमारा चैप्टर है आज का। बैटरी के बारे में हमें पता चल गया कि ये डीसी को स्टोर करता है, बट ये इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें आउटपुट में कन्वर्ट होकर मिलती है, ठीक है। और किसने बनाया इसको, कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब हमारे माइंड में कभी भी नहीं ये आएगा ये एक सेल ऐसे हो सकता है। हमें आउटपुट पे क्या दिखता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा और बीच में पैकिंग दी होगी, उसको कवर किया होता है, उसके ऊपर लिखा होता है एवरीडे लिखा होगा, निकॉन लिखा होगा, ड्यूरासेल लिखा होगा, या कुछ भी लिखा होगा, बट वो हमें इन बिटवीन क्या है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कभी नहीं पता होगा। तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, जिसमें ये दो जो रॉड्स हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये जो सोल्यूशन, ये जो वाटर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये दो चीजों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सेल हो, ये दो चीजों से मिलके बना होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं सेल में। यहाँ ए सेल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ व्हिच कन्वर्ट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि सोर्स है ईएमएफ का, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये माइंड में रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, रॉड्स भी बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं बेसिकली, ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दोनों का मटेरियल डिफरेंट होता है एक दूसरे से, दोनों सेम मटेरियल के नहीं हो सकते हैं, इसीलिए एक पॉजिटिव माना जाता है, एक नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करता है, एक सिर्फ नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं दोनों रॉड्स या दोनों इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये डिप किए होते हैं इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये एक सोल्यूशन होता है, ये एक एसिड होता है या एल्कालाइन होता है, काइंड ऑफ H2SO4 कह सकते हैं। तो वो सोल्यूशन में इसको डिप किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, इन जिससे ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में, यही केमिकल रिएक्शन जो है ये बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट पे मिलता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल आर कॉल्ड एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड का नाम देते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है हम उसको कैथोड का नाम देते हैं। ये माइंड में रखना है, पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड का नाम देते हैं। The potential difference is established between the two electrodes due to the chemical reaction taking place at each electrode. दोनों इलेक्ट्रोड्स में अपने अपने मटेरियल होते हैं अलग अलग, और दोनों ही जब इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ डिप करते हैं अलग अलग रिएक्ट होता है, दोनों में केमिकल रिएक्शन होगा, और उनके अकॉर्डिंगली इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया हुआ है मैंने, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि इलेक्ट्रिकल करंट का रीजन बनता है। When the external circuit is completed by connecting a load, जब इन दोनों के बीच में एक लोड लगा दिया जाता है, this RL is called the load। जब तक लोड नहीं लगाया इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, because it is having open circuit।
बट जब इसमें लोड लगा देंगे कोई और दोनों कनेक्शन जो है पॉजिटिव नेगेटिव इसको कनेक्ट कर देंगे विद द लोड, क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। एक्चुअल में जो करंट फ्लो करता है वो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बट हम जो डायरेक्शन लेते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारी एक्चुअल में हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, जो एक्चुअल में हम मानते हैं वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। हम हमेशा मैथमेटिकली कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, आपने यही मानना है। ठीक है, आगे इसके सिंबल की बात करें तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल, राइट में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक प्लेट बड़ी है एक छोटी है, बड़ी प्लेट का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, छोटी प्लेट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। जब भी हम कभी सेल के बारे में बात करेंगे ऐसे दो प्लेट्स बना देंगे, पर अगर जब हम बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी में हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेल्स बनाएंगे जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बैटरी। जब भी बैटरी की बात करेंगे तो ऐसे सिंबल बनेगा, जब भी सेल की बात करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। ये डायग्राम जरूरी है उसके लिए बनाना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो है एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, और वो एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है उसको, एंड दैट सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होती है इन पॉइंट्स पे, टर्मिनल्स पे, और जब हम लोड लगाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा उस लोड में। दैट इज द मेन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल, या इसके बारे में, दोनों के बारे में डायरेक्ट ही पूछ लिया होगा। दो तरह के सेल होते हैं हमारे, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। ये 5 मार्क्स में 100% आएगा आपको। ठीक है, तो ये अलग से टॉपिक डिस्कस करना है हमने। दो तरह के होते हैं प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल क्या होता है, these are the cells in which chemical reaction cannot be reversed by passing electric current through the cells। अब क्या होता है हमारे पास, ये जैसे अभी हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें ये चीजें लगी होती हैं। एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है। जब हम यहाँ पे लोड लगाएंगे तो क्या होता है, ये सारी केमिकल एनर्जी यूज हो जाती है। ये सारी केमिकल एनर्जी जो है रिएक्ट कर करके खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जब ये खत्म हो गई इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी, तो हम दोबारा से केमिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। वो कब करते हैं, जो रिचार्जेबल सेल होते हैं। कैसे करते हैं, अगर हम इस पे बैटरी लगा दें इसको चार्ज करने के लिए, तो इसमें केमिकल एनर्जी दोबारा आ जाती है। बट ये जो प्राइमरी सेल्स की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो दोबारा नहीं ला सकते हम। एक बार केमिकल एनर्जी खत्म हो गई तो ये सेल खत्म हो गया, एंड दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल्स, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी रिचार्ज और यूज्ड अगेन, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल्स। ये कौन से सेल होते हैं, जो हम एवरीडे वाले यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एवरीडे लिखा होता है, नॉर्मली 10 रुपीज का आता है जो। इसके अलावा और ड्राई सेल, और जो हमारे वॉचेस में पड़ते हैं छोटे से, जिसको हम बटन सेल बोलते हैं। ठीक है, वो सेल हो गया, या हमारे कंप्यूटर में CMOS सेल होता है, वो भी हमारा जो है वो प्राइमरी सेल होता है। तो जो सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल्स। क्यों ऐसे होता है, बिकॉज उसमें केमिकल एनर्जी को जनरेट नहीं किया जा सकता है। और इसकी एग्जांपल्स दी हुई यहाँ पे, ड्राई सेल, मर्करी सेल, डैनियल सेल, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल्स। ठीक है सर, पर उसमें पहले तो मतलब डालना ही होगी एनर्जी। बेटा, जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, तो उसमें पहले ही मशीन के थ्रू डिप, तो वो सोल्यूशन को डिप कर दिया जाता है, मतलब सोल्यूशन फिल कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग कर दी जाती है। बट जब उस पर लोड लग जाता है वो सारा सोल्यूशन सूख जाता है। ओके सर। ठीक है, आपने कभी देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी को हम पानी देते हैं, देखा ना? यस सर। और पानी क्यों देते हैं, बिकॉज उसमें भी एक केमिकल होता है, वही सोल्यूशन होता है, वो पानी के साथ
जो है उसको उसकी रेशो होती पानी के साथ यूज करने की, वो क्या करता है, वो भी सूखना शुरू हो जाता है। फिर हम पानी देते हैं, फिर वो दोबारा से जनरेट हो जाता है केमिकल एनर्जी उसमें। तो वो हम रीयूज करते रहते हैं, मतलब उसको जो है उसका केमिकल को हम वहां पे रखते हैं। अगर हम उसको पानी नहीं देंगे ना, थोड़ी देर बाद वो वहां पे सूखा सूखा ऊपर आ जाता है। कभी 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 हमें जंग लगता है कि बैटरी के ऊपर जंग लग गया, दिखता है ना। ये कब वैसे देखा नहीं मैंने। आप कभी ना उसको यूज ना करो, 1 साल पड़ा रहने सर दो। ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ हाँ, ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ व्हाइट ਹੁੰਦਾ। जा जाता है, वो केमिकल उसका बाहर आ जाता है सारा, मतलब वो सूख जाता है अंदर से सारा। ओके सर। हाँ, कभी आप ऐसे देखना कि आपने किसी घड़ी में या किसी टॉय में सेल रख लिया और 3-4 साल बाद उसको निकाल रहे हो तो वो जंग लगा होता है उसमें, पूरा ही वो यस ऐसे सर, है होता ना। है। तो वो भी यही चीज है कि उसका केमिकल बाहर आ जाता है, मतलब वो अंदर से पूरा सूख जाता है उसका सोल्यूशन, और वो सारा जो है स्पिल आउट हो जाता है। तो वो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते छोटे सेल। बट जो हमारे बैटरीज होती हैं जो रिचार्जेबल, उसको हम दोबारा रीयूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है। तो प्राइमरी सेल जिसमें हम ओके। रिचार्ज नहीं कर सकते, जिसके केमिकल रिएक्शन को दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं सेकेंडरी सेल्स की तरफ। सेकेंडरी सेल ऐसे सेल्स होते हैं इन विच केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे कैन बी रिवर्स्ड आ गया, दैट मीन्स इसमें हम दोबारा से रिचार्जिंग जो है वो पॉसिबल है, और इसको हम यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब ये हमारा सेल है, इसमें जो अगर ये सोल्यूशन जो है ये खत्म हो गया, जो इनके बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, अगर ये खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक बैटरी लगाते हैं, और बैटरी इसको थोड़ी देर के लिए चार्ज कर देती है, और ये जब चार्ज हो जाता है ये सोल्यूशन दोबारा से अपना केमिकल जो है वो रीगेन कर लेता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स भी अपने जो केमिकल है वो वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। तो इसको रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे हमारी बाइक्स की बैटरी हो गई, या आजकल के जो पावर बैंक है, पावर बैंक में जो सेल्स लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, बिकॉज दे आर रिचार्जेबल। तो दीज आर कॉल्ड स्टोरेज सेल, इसको हम स्टोरेज सेल का नाम भी देते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द सम सेकेंडरी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, लिखना इतना ही है, 5 मार्क्स में आएगा। तो दोनों की डेफिनेशन और दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो देनी है, और दोनों की एग्जांपल दे देनी है हमने। आगे चलते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं सेल्स की, जिसके बारे में ऑलरेडी बड़ी बार आएगा आगे आगे। तो वो जो टर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली टर्म होती है हमारी ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल जो होती है वो सेल के ऊपर लिखी होती है, सेल की कितनी कैपेसिटी है वोल्टेज देने की, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, अब इसके बारे में टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब सर्किट जो है वो ओपन है, मतलब हम सेल को मार्केट से खरीद के लाते हैं और हमने अभी तक लोड नहीं लगाया है, उस टाइम पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करूं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूं या मल्टीमीटर है हमारे पास अगर, तो अगर मैं उसकी वोल्टेज चेक करूं तो दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। जब हम लोड नहीं लगा रहे हैं तब की बात कर, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल। मतलब ये वो वोल्टेज है जो कि मैक्सिमम होगी इसकी, मतलब ये अभी तक यूज नहीं हुआ है। जैसे इसके ऊपर अगर 1.5 वोल्ट लिखा है तो दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द ई। ठीक है, ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ये देखो नीचे डायग्राम बना हुआ है, ई की कुछ आर भी होगी, दैट आर इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे बनाया हुआ है प्रैक्टिकली। तो जब हम ई को मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, ओपन सर्किट रख के, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट रख के हमने यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करना है, एंड दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। आगे चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हमें पता है कि हर बैटरी की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज द ओपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द सेल इटसेल्फ। जो सेल अपने कारण किसी करंट को अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी हुआ है ये टॉपिक। तो इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे आर से। ठीक है, इसकी बेसिकली हम बैटरी के साथ ऐसे छोटी सी आर लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी कुछ
कॉमन जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है जो ये अपोज करेगी करंट को। अगली टर्मिनोलॉजी है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। अब वोल्टेज एंड ईएमएफ दोनों एक ही वर्ड है, बट ईएमएफ जो है वो है जब हम ओपन सर्किट में वोल्टेज को चेक करते हैं, बट टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल when it is sending current through the external circuit। अब हमने अगर यहाँ पे लोड लगा दिया, you can see from the diagram, ये हमारे पास EMF है। EMF के जहाँ पे हमारे दो टर्मिनल्स आते हैं, अगर मैं इस पे कोई बल्ब लगा दूं, ठीक है, और बल्ब के क्रॉस में अगर वोल्टेज चेक करूं तो दैट इज नोन एज बी। अब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया उसको, शॉर्ट सर्किट मतलब क्लोज सर्किट कर दिया, जब लोड लगा दिया उस टाइम पे जो वोल्टेज निकलेगी हमारी दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज, और ये हमेशा ईएमएफ से कम होगी, ठीक है। V is always less than E। This is because of the fact when a cell is supplying current to the external load, the voltage drop occur in the resistance of the cell। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, हमारी जो V होगी वो होगी E माइनस IR। IR क्या है, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप जब हम ईएमएफ से माइनस कर देंगे तो वो हमारी V बन जाएगी। मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हमारी वोल्टेज थोड़ी सी कम आउटपुट दिखाती है। अगर 1.5 वोल्ट का हमारे पास यहाँ पे सेल है तो जो उसकी जब हम लोड लगा देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज आएगी 1.4 समथिंग, 1.5 नहीं आएगी। ये जो थोड़ा सा कम क्यों हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो दीज आर 3 टर्मिनोलॉजीज, आपने याद रखना है। ईएमएफ जिसको E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बात की है कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें हाई करंट या हाई वोल्टेज चाहिए, DC। We already knew that a single cell can deliver small current at low voltage। हमें पता है कि जो सिंगल सेल होता है वो स्मॉल करंट प्रोड्यूस करता है लो वोल्टेज पे, बट बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें हाई करंट एंड हाई वोल्टेज चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, we connect such number of cells in series, पैरेलल और सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। 3 तरह की ग्रुपिंग होती है, सीरीज, पैरेलल और सीरीज पैरेलल, ठीक है। इसमें से सबसे पहली जो ग्रुपिंग होती है दैट इज सीरीज ग्रुपिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग बनेगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आता है, तो इसका हम अलग से आंसर देंगे। सबसे पहले है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज में ग्रुपिंग का मतलब क्या है, एक सेकेंड वेट करना। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, तो मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे पहले वो बना लीजिए। हमारे पास ये एक सेल होता है जिसमें हम E और R लेके चलते हैं, ठीक है। अगर सीरीज ग्रुपिंग, हमें सीरीज वर्ड पता है कब होता है, जब एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मल्टीपल सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और इनको एक कॉमन लोड के साथ कनेक्ट कर दे तो दैट इज कॉल्ड द सीरीज ग्रुपिंग। ये हमारा हो गया E R, ये भी E एंड R है, ये भी E एंड R है, और ये भी E एंड R। तो ये हो गया हमारा सीरीज ग्रुपिंग, जिसमें से कॉमन करंट फ्लो करेगा, बट अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो वी विल गेट द वोल्टेज 4 टाइम्स वोल्टेज, क्योंकि ये 4 सेल्स को कनेक्ट किया है सीरीज में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, an arrangement of cells in which the negative terminal of one cell, किसी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहे। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तीसरे का नेगेटिव सो ऑन आगे के साथ। तो दैट ग्रुपिंग इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। और ये ग्रुपिंग कब हम यूज करेंगे, मतलब हमें सीरीज ग्रुपिंग की जरूरत कब पड़ेगी, it is used in the applications where high voltage is required। जब कभी हमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपने कभी देखा होगा
हमारी टॉय कार में पीछे 3 सेल्स की जगह होती है। 3 सेल्स का मतलब है वो आपस में, एक हम ऐसे लगाते हैं इस डायरेक्शन में, एक ऐसी डायरेक्शन में लगाते हैं, एक ऐसी डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो आपस में सीरीज में कनेक्ट होगा। ये मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव। मतलब ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। हमें आउटपुट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलेगी। तो ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, और ये जो कॉमन पॉजिटिव नेगेटिव बच जाता है यहाँ से हमें तीनों की वोल्टेज ऐड होके मिलेगी। इसकी 1.5, इसकी 1.5, इसकी 1.5, टोटल चेक करेंगे तो 4.5 वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगी। सो व्हेनेवर वी रिक्वायर हाई वोल्टेज we will connect the cells into the series grouping, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है या एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने कि मान लो n सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज में विद द हैविंग EMF सोर्स E वोल्ट के n सेल्स और R इंटरनल रेजिस्टेंस है उनकी, वो कनेक्ट किया है हमने सीरीज में, और उनके क्रॉस एक कॉमन लोड लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। ये कैपिटल R जो है ये इसकी कॉमन रेजिस्टेंस है जो कि लोड की रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF जो होगी हमारी सीरीज ग्रुपिंग की वो कितनी होगी, n नंबर ऑफ सेल्स है, एक सेल की जो EMF है दैट इज नोन एज E। तो टोटल जो हमारी वोल्टेज आएगी वो आएगी n मल्टीप्लाई बाय E, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जहां वोल्टेज हमें हाई चाहिए वहां पे हम सीरीज ग्रुपिंग यूज करें। तो कितनी वोल्टेज मिलेगी हमें, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, और E क्या है, एक सेल की EMF। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी टोटल जो है वो EMF आ जाएगी। बच्चे लेस देन 1 मिनट रह गया है, रीज्वाइन करेंगे फिर दोबारा शुरू करते हैं। ओके ओके सर। टोटल EMF जो होगी दैट इज डिनोटेड बाय NE। N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और E क्या है, एक सेल की EMF। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी पूरे ग्रुपिंग की, तो वो होगी N इंटू R। R क्या है, एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, और N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, तो N इंटू R विल बी द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है। बट अगर हम टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस देखें तो एक R यहाँ पे भी लगा हुआ है, और ये जो R है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR। इसके साथ हम R को प्लस करते हैं क्योंकि सीरीज में है ये लोड, तो टोटल हमें सर्किट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब हमें R भी मिल गई, अब हमें V भी मिल गया, EMF भी मिल गई। हम I निकाल सकते हैं एज पर ओम्स लॉ। I होता है V अपॉन R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। V हमें पता है दैट इज NE, पूरे सर्किट की जो EMF है दैट इज NE, और जो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है वो है NR प्लस कैपिटल R जो कि लोड के साथ। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे सर्किट का करंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज ग्रुपिंग में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है I निकालने का। V हमारा टोटल निकालेंगे इस फॉर्मूले से, R निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, और I निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो दैट इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग। और इसका डायग्राम ये जरूर बनाना है, डायग्राम की स्लाइड में बना नहीं पाया था, और बट यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है, ये जरूर बनाना है सीरीज ग्रुपिंग में। आगे चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अब पैरेलल ग्रुपिंग में भी हमने डायग्राम बनाना है, वो क्या बनाएंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। हमारे पास ये एक EMF सेल है जिसकी E है EMF और R है रेजिस्टेंस। इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, मान लो 4 सेल है मेरे पास, n नंबर ऑफ सेल्स है फॉर एग्जांपल। तो n नंबर ऑफ सेल्स के सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ और सारे नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ जब मैं कनेक्ट कर दूंगा वो मेरा बन जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। जब भी हम सारे सेल्स को पॉजिटिव एक तरफ करते हैं और नेगेटिव एक तरफ करते हैं और उसको लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, दिस इज द लोड, तो वो बन जाएगा मेरा पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। अब ये ग्रुपिंग कब यूज होगी, पहले यहाँ डेफिनेशन नोट करते हैं। An arrangement of cells in which the positive terminal of all the cells are connected to common point। जब पॉजिटिव टर्मिनल, सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर दें
और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट, और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को किसी दूसरे कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूं, एंड दैट इज कॉल्ड द पैरेलल ग्रुपिंग, एंड दिस ग्रुपिंग इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर हाई करंट इज रिक्वायर्ड। ये ग्रुपिंग हमें कब जब यूज होगी, जब हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट है। हाई करंट मतलब अगर मान लो मेरा एक सेल जो है वो 10 मिली एम्पियर करंट दे रहा है, अगर मैं इसको पैरेलल ग्रुपिंग में लगाऊंगा तो मैं यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा टोटल ग्रुपिंग में से वो करेगा 40 मिली एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 हमने जो है वो सेल्स पैरेलल में कर लिए और सबकी वोल्टेज सेम रहेगी, सबके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, दैट इज 1.5 वोल्ट, बट हमें जो करंट मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। ये होगा हमें पैरेलल ग्रुपिंग में। जब कभी हमें हाई करंट की जरूरत है हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जब कभी हमें हाई वोल्टेज की जरूरत है हम उसको सीरीज में कनेक्ट ठीक है जी। और इसका जो अब इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है जो कि पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। एक सेल की ईएमएफ जो है वो है E वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है R ओम, ठीक है। और अब हमने टोटल ईएमएफ निकालनी है, तो टोटल ईएमएफ क्या होगी हमारी ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग, दैट इज E, ठीक है। वो E ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो टोटल ईएमएफ विल बी E। टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, एक मिनट वेट करना। हाँ जी, अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, पढ़ा हुआ है ना हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यस सर, तो वो पैरेलल डिवाइड, में कम हो जाती है। हाँ जी, वो डिवाइड हो जाती है ना। अगर मान लो ये मेरी 100 ओम की है तो इसको पैरेलल में 400 ओम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूं, वो बन जाएगी 100/4 जो कि 25 आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही हमारे मान लो n नंबर ऑफ हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग है, तो हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी, R डिवाइडेड बाय n, ठीक है। R डिवाइडेड बाय n हमारी टोटल रेजिस्टेंस होगी। और अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालूं यहाँ पे सर्किट, तो ये R लगा है, ये भी पैरेलल है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमारी आएगी, नहीं सॉरी ये सीरीज में है, ये जब टोटल निकल आएगी R/n, ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बनेगी R/n प्लस कैपिटल R। तो ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस हो गई, ये हमारी टोटल ईएमएफ हो गई। अब हमने I निकालना है, तो I क्या होगा, V/R। V क्या है, E। R क्या है, R/n प्लस R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I का फॉर्मूला इन दिस केस, ठीक है, जो कि बढ़ के आएगा हमेशा। सो दिस विल बी टोटल I, ये पैरेलल ग्रुपिंग में होगा, और ये कब यूज होगी, जब हमें हाई करंट की जरूरत होगी, ठीक है जी। अब हमारा थर्ड जो है ग्रुपिंग, दैट इज नोन एज सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। नोट कर लीजिए सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स in which a number of cells are connected in series in a row and a number of rows are then connected in parallel is called series parallel grouping. This grouping is used
where both in applications where both high current and high voltage are required। इसका डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से आपको ये लाइंस भी समझाऊंगा। हमने क्या किया, एक रो में मल्टीपल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मान लो ये E है, एक और E सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक और कर दिया। मान लो ये n नंबर ऑफ सेल जो है हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी रो को एक और रो बना दी ऐसी ही जिसमें n नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है, उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब ये ऐसी रोज जिसमें सीरीज में कनेक्टेड है सेल, उनको सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो वो बन जाएगा मेरा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। क्लियर टू ऑल? यस सर। ये हमें कब जरूरत पड़ेगी ग्रुपिंग की, जब हमें दोनों हाई वोल्टेज भी चाहिए और हाई करंट भी चाहिए, तब हम सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। मतलब हमारी डिमांड पे है कि हमने सेल्स को सीरीज में यूज करना है या पैरेलल में यूज करना है, ठीक है। और वो होगा हमें कितनी वोल्टेज चाहिए और कितनी करंट चाहिए हमें टोटल, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो सीरीज पैरेलल अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी इस केस में कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन विच नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रो। एक रो की बात करें, दिस इज कॉल्ड अ रो 1, दिस इज कॉल्ड रो 2 एंड दिस इज कॉल्ड रो 3। हर रो में हमने जो मल्टीपल सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट कर दी है। सीरीज में हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव से, अगले का नेगेटिव पॉजिटिव से, तो ये नंबर ऑफ रोज जो हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दी हमने सारी रोज को, कि एक तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल है सारे पॉजिटिव कॉमन कर लिए, नेगेटिव टर्मिनल सबका कॉमन कर दिया। तो ये जब ग्रुपिंग बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग एंड दिस ग्रुपिंग इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर बोथ हाई करंट एंड हाई वोल्टेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे वो क्या होगी, हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो वो है n सेल्स, उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। एक सेल की ईएमएफ होगी E, एक सेल की रेजिस्टेंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। और कितनी रोज को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, नंबर ऑफ रोज कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज कॉल्ड m। अब हमने टोटल करंट निकालना है। पहले तो एक रो का टोटल ईएमएफ ऑफ ए रो वो कितनी निकलेगी। एक रो में n सेल्स हैं, एक सेल की ईएमएफ है E, तो हमारे पास NE जो है वो एक रो की ईएमएफ हो जाएगी। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए रो, एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी NR। अब हमने टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट निकालना है। तो एक रो की अगर ईएमएफ है NE और इसको हम अगर पैरेलल में लगा दें सभी को, तो वो सेम रहेगी, तो हमें टोटल ईएमएफ जो मिलेगी वो मिलेगी NE। बट अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, तो एक रो की है NR और हमारे पास m रोज हैं, तो NR डिवाइडेड बाय m, ये होगी हमारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट निकालूं यहाँ से, तो वो बन जाएगी NR ओवर m प्लस कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस, वो उसके सीरीज में कनेक्टेड होगा। अब हमने I निकालना है, तो I होगा V अपॉन R, V है हमारे पास NE, R है हमारे पास NR ओवर m प्लस R, तो I हमारा होगा यहाँ पे NE डिवाइडेड बाय NR डिवाइडेड बाय m प्लस R। ये फॉर्मूला होगा हमारा I निकालने का सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया हो।
अगर कोई पॉइंट शेयर करना है आपने, कोई डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो। आ जाओ।